Good morning, everyone. Our today's topic is translator. But before beginning with that, let's discuss one or two things that we should know. Okay, now we know that whenever we give input to the computer, or we can say that system, whenever we get input to the computer or system, that is our data, or we give its instructions, or we can call it as command, or simply as an input. These all things are one and the same thing. Either we call them instructions, commands, or input. Next thing is, whenever there are n number of instructions or commands or input, n number means collection of instructions, commands, or input, that is called as program. That makes up a program. हाँ जी, जब भी हमारे पास n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे या कमांड होगी, इनपुट होगी, n कैन बी 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh and many more. n can be anything means any counting. 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000, 10,000, 1 लाख, कुछ भी हो सकता है. दैट मीन्स कि जब भी हमारी n इंस्ट्रक्शंस होंगी, उनकी कलेक्शन को वी विल कॉल इट एज अ प्रोग्राम. सो प्रोग्राम इज अ व्हाट? प्रोग्राम इज नथिंग, जस्ट collection of these commands or instructions or input that will tell computer कि what it need to do, कि computer को करना क्या है. So that is program. हाँ जी. Now moving on next, if we say that set of, or we can say that collection of programs is what? That is software. These are some basic terms. Now let's discuss. There are two type of programming languages: high level and low level. There are two types of programming languages: high level programming language, and low level programming language. These are programming languages. हाँ जी, these are what are programming languages: high level language and low level language. High level language is what? That we understand, we easily understand, that is human can easily understand. That means human readable language. ठीक है जी. And low level language is our assembly language. This is our low language. हाँ जी बेटा जी, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है. आई सेड ओवर हेयर इज ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज. दैट डजंट मीन्स कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है कि ह्यूमन इनको पढ़ नहीं सकता. ह्यूमन कैन ऑल्सो रीड देम. एंड वन इज मशीन लैंग्वेज. दैट इज इन फॉर्म ऑफ 0 and 1. हाँ जी. नाउ लेट्स डिस्कस high level language, machine language. These are two language, two programming language, and one is machine language, that is 0 and 1. Why it is called machine language? Because system को सिर्फ 0 और 1 की language समझ में आती है. That's why we said it as a machine language, क्योंकि ये machine को सिर्फ यही भाषा समझ में आती है. अब one thing I write over here is that human readable language. That doesn't mean human cannot read assembly language और machine language. ह्यूमन तो भाई 0-1 की भी बनाया ह्यूमन ने ही है. सो ह्यूमन 0-1 की भी लैंग्वेज पढ़ सकता है, असेंबली भी पढ़ सकता है, और हाई लेवल लैंग्वेज भी पढ़ सकता है. बट द रीज़न बियॉन्ड दैट, इसको हम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट गिव्स अस ईज. It gives us ease. That means we can easily read it. A non-person can also read it. ठीक है जी. बट दैट डजंट हैपन इन केस ऑफ 0-1 लैंग्वेज. यहाँ पे आपको प्रोफेशनल चाहिए. एंड इवन प्रोफेशनल डजंट गारंटीज कि जो चीज़ लिखी हुई है, जो काम बताया है, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो एग्जैक्टली वही चीज़ पढ़ेगा या उसको ही एग्जीक्यूट करेगा. मिस्टेक
पॉसिबिलिटी है, एरर की पॉसिबिलिटीज़ हैं. सेम विद असेंबली लैंग्वेज कि ह्यूमन इनको पढ़ सकता है बट कंस्ट्रेंट्स है, ये हमें इतना ईज प्रोवाइड नहीं करती, वी डू नॉट रीड देम ईजिली. असेंबली लैंग्वेज इज़ व्हाट, सिंपली इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0 1 ये हमें क्या है, निमोनिक्स देती है, हमें क्या है, निमोनिक्स. और वी कैन से दैट हमें शॉर्टकट्स प्रोवाइड करती है, उनको हमने नाम दिया दैट इज़ असेंबली, असेंबली नाम दिया उनको, दैट्स वाई इसका नाम असेंबली लैंग्वेज पड़ा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू राइट फॉर 5 + 2, so machine language में we have some coding for this 5, like this is 1 0 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, and for some function for this addition, sum for this, and then 2. हाँ जी, these thing, this is written in machine language. We can read it कि हाँ भाई 1 0 1 0 1 what is this, but it is highly difficult for us to remember all these things. Then instead of this what we did कि instead of this writing this, or instead of writing plus sign, we just simply use add. So in assembly language we write add 5 2. So this is easy comparatively to the machine language. Now instead of writing that, we will use these mnemonics or these shortcut that will what, clarify us कि भाई, clarify us and system both कि भाई 5 और 2 को what we need to do is we need to perform 5 + 2 addition, and we need to give the result 7. We need an output 7. System हमें क्या देगा, output 7 देगा. For multiplication, instead of writing the whole code 0 1 0 1, we will write multiply mul 5 2. Outcome will be our 10. This is our outcome, or we can say that output. ठीक है जी, these are some basic mnemonics we are just discussing over here, but in order to remember all these things, that is also hectic. ठीक है, add and multiply ये बहुत basic चीज़ें हैं, और बहुत हाई चीज़ें होती हैं, लाइक फॉर कंकैटिनेशन हुआ, कोई प्रोग्राम लिखना हुआ, कोई कोड लिखना हुआ. सो वी जस्ट नीड, सिर्फ इनसे ही काम नहीं चलेगा. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, इनपुट भी लेंगे, आउटपुट भी, यूज़र से इनपुट, यानी जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा हो, एग्जीक्यूट होगा, एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, उस इनपुट को देन प्रोसेस करेंगे, लाइक व्हाट्स योर नेम, क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पे क्या है, एट रन टाइम इफ आई राइट प्रियंका एंड देन एंटर प्रेस करती हूँ, तो हमारा सिस्टम प्रोसेस कर रहा है हेलो प्रियंका. इस टाइप का काम हो रहा है. सो इस टाइप का काम करने के लिए वी नीड टू रिमेन शॉर्टकट्स फॉर एवरीथिंग. तो वो भी एक चीज़ क्या है हमारे लिए, हैक्टिक. Comparatively to machine level language, that is easier comparatively, but still एक burden है, एक hectic है. So what we introduce is our high level language, जिसको हमने क्या बोला, human readable language. That means we can easily read it. This means program जो करना होगा हमें अपनी language में कर रहे हैं, in our language. ठीक है जी, simply हम लिख रहे हैं what's your name, instead of writing any shortcut or any 0 1, we are just simply writing these things. वही चीज़ हमें क्या हो रही है, आउटकम में भी वही चीज़ें मिल रही है. सो दैट इज़ आर हाई लेवल लैंग्वेजेस, HLL, दैट इज़ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस. ठीक है जी, दीज आर L लो लेवल लैंग्वेजेस, ट्रिपल. क्लियर है बेटा जी? हाँ जी. अब वन थिंग, ये तो हमने देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, बट सिस्टम को तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज़ 0 1. दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट आर हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, दोनों को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ आर इन मशीन लेवल लैंग्वेज. क्लियर है आपको? सो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी रिक्वायर इज ट्रांसलेटर. What we require over that is translator. Let's an example. If there are two persons, ठीक है जी, one is our Indian, one is American. हमारी language is Hindi and American language is English. ठीक है जी,
इंडियन लैंग्वेज इज़ हिंदी एंड अमेरिकन लैंग्वेज इज़ इंग्लिश. बट इस इंडियन को इंग्लिश नहीं आती है, इस अमेरिकन को हिंदी नहीं आती है, बट दे नीड टू क्रैक सम मीटिंग, क्रैक सम डील, कोई डील करनी है. हाउ विल दे कम्युनिकेट विद वन अनदर? दे रिक्वायर अ ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर मतलब कि ऐसा इंसान चाहिए जिसको हिंदी भी आती हो और इंग्लिश भी आती हो. दैट मीन्स व्हेन इंडियन सेज समथिंग, वो उसको ट्रांसलेट करके अमेरिकन को बताए इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड व्हेन अमेरिकन सेज समथिंग, तब वो क्या करे, इंग्लिश को कन्वर्ट करके हिंदी में इंडियन पर्सन को बताए. देन ओनली इट इज़ पॉसिबल कि ये दोनों बंदे आपस में क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे. एल्स कम्युनिकेशन बिटवीन देम इज़ नॉट पॉसिबल. So same scenario will happen over there कि भाई human high level languages and low level languages को convert करने के लिए into machine language we required some translators. So जो program काम करेगा इनके बीच में, that is translator. Another thing is कि जो भी कोड हमारा either in human readable high level language में होगा, that is source code. That is our source code. And then machine language, that means in 0-1 we need to convert our source language into our, this is our object code. So that means translators क्या करेंगे बेटा जी, source code से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्जन करेंगे, सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है जी. नाउ लेट्स डिस्कस, इतना तो हमने कल डिस्कस किया था. लेट्स नाउ मूव ऑन फर्दर. व्हाट आर ट्रांसलेटर्स वी डिस्कस्ड अर्लियर. इसके नाम्स भी देखे थे हमने. 3 टाइप्स होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर. ये 3 चीज़ें होती हैं हमारी. वी डिस्कस देम इन ब्रीफ. नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन कि भाई ये है क्या. लेट्स डिस्कस अबाउट असेंबलर फर्स्ट. हाँ जी, सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट असेंबलर. असेंबलर डज व्हाट. हाँ जी, पहले हमारी क्या है, लेट्स गो फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस. दैट इज़ आर Java, PHP, Python, C++, etc. etc. These are our high level languages. Then comes our assembly languages. Then our machine code. ठीक है जी, machine code. And then our processor. In this way things happen. Over high level languages, our interpreter and compiler will take place. In assembly language, our assemblers will take place. ठीक है जी. Now assemblers का काम क्या है? As it's a translator, it will convert source code to the object code. Means क्या है, assembly language को it will convert into the machine. What it will do is assembly language को convert करेगा हमारे machine code में, and then उसके बाद क्या होगा, machine code में convert करने के लिए it will go for processor. processor के लिए कहाँ जाएगा, हमारे CPU के पास. that is our hardware. clear everyone, इतना सभी को. हाँ जी. नेक्स्ट थिंग इज असेंबलर क्या करेगा. इफ़ फॉर एग्जांपल असेंबलर को 10 चीज़ें, 10 इंस्ट्रक्शंस को इट नीड टू कन्वर्ट. ठीक है जी. सो इट विल डू व्हाट कि हर असेंबली लैंग्वेज के लिए इट विल क्रिएट अ डिफरेंट मशीन को. क्लियर है बेटा इतना. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, दैट इज आर इंटरप्रेटर्स एंड कंपाइलर. लेट्स डिस्कस व्हाट्स इंटरप्रेटर फर्स्ट एंड देन विल गो फॉर द कंपाइलर्स. हाँ जी, इंटरप्रेटर वर्क्स ऑन, वी डिस्कस्ड ऑन हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
अपार्ट फ्रॉम देम अनदर थिंग इज़ व्हाट कि यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आर प्रोग्राम, इसके अंदर हमारी 10 इंस्ट्रक्शंस हैं. सो ओवर हेयर इट विल कन्वर्ट लाइन बाय लाइन. दैट मीन्स फर्स्टली पहले इस लाइन को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट कर दे भाई 0 1 0 1 0. देन ये लाइन क्या है हमारी, एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी. पहले कन्वर्जन हुआ देन एग्जीक्यूशन. देन आफ्टर देन ये क्या आएगा सेकेंड लाइन पे, एंड देन it will convert this and then it will go for execution. So what does it does means what it is doing over here is it is converting our program line by line, line by line execution takes place over here. ठीक है जी. now अब क्या है, as soon the instructions are converted what we have seen over here is जैसे ही कोई भी इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट हुई, as soon it is converted फटाफट वो कहाँ जा रही है, एग्जीक्यूशन के लिए जा रही है. ठीक है जी. दैट मीन्स कि सिस्टम को है जो एग्जीक्यूशन के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है कि उसके पास कब कमांड आएगी, कब कि आपको ये करना है, एंड देन वो अपना काम स्टार्ट करेगा. नहीं जी, इंस्ट्रक्शन आए, कमांड करना स्टार्ट फटाफट, दैट्स इट. अनदर थिंग दैट इज़ कि जैसे ही लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन को हमने क्या किया, ट्रांसलेट करा, बट वी हैव सम एरर ओवर हियर. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा ना, इंटरप्रेटर को बताएगा कि यहाँ पे एरर है. इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग रेस्ट ऑफ द पेज, रेस्ट ऑफ द कमांड्स, इट विल स्टॉप हेयर एंड बोलेगा भाई यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम है दैट इज़ लैकिंग, दैट इज़ फेलिंग, डील विद इट फर्स्ट. देन हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन में जाएंगे और वी कैन एग्जीक्यूशन में जाएंगे एंड देन बाकी जो हमारे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस बची हुई है, बाकी जो हमारा लेफ्ट ओवर प्रोग्राम है, वी विल डील विद इट आफ्टर दैट ओनली. क्लियर है, ये इसके एडवांटेजेस भी हैं. अब नेक्स्ट थिंग इज़, अब क्या यार देखो बेटा, ये लाइन बाय लाइन कर रहा है, दैट मीन्स ये स्लो है कि एक लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, पहले ट्रांसलेट एंड देन एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगी. सो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. ठीक है जी. एवरी टाइम क्या होगा, हर टाइम इसको यही प्रोसेस करना पड़ेगा. उसके बाद सेकेंड थिंग इज़ क्या कि लाइक दिस इज़ द प्रोग्राम पी, इसने एक बार इसको सारे को इंटरप्रेट कर दिया. अब नेक्स्ट टाइम अगर हम दोबारा प्रोग्राम पी को रन कर रहे हैं तो ये सारा प्रोसेस विल रिपीट इटसेल्फ. दैट मीन्स कि जो लास्ट इसकी स्टेट है वो सेव नहीं रहती. अगर ये थर्ड इंस्ट्रक्शन पे अटक गया तो नेक्स्ट टाइम ये थर्ड इंस्ट्रक्शन पे अटकेगा ही. क्लियर है. उसके सिवा और चीज़ें हैं कि हमने कहा ना कि ये क्या है, कोई बैकअप नहीं क्रिएट कर रही कि भी नेक्स्ट टाइम की ठीक है भाई एक बार एग्जीक्यूट हो गई है तो आप नेक्स्ट टाइम यहीं से चलोगे. दैट मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो क्रिएट नहीं हो रही. दैट इज़ मीन .exe फाइल जो है वो ये इंटरप्रेटर क्रिएट नहीं कर रहा. ठीक है जी. नेक्स्ट थिंग क्या है, ये exe फाइल तो क्रिएट कर नहीं रहा है. सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, इफ़ इट वांट टू शेयर इट्स फाइल विद अनदर सिस्टम, अनदर नेटवर्क, किसी के साथ इसको अपनी फाइल शेयर करनी, चाहे दूसरे ड्राइव के साथ शेयर करनी, तो इसके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल तो है नहीं, तो एज अ टीज़ ये अपने प्रोग्राम को क्या कर देगा, शेयर कर देगा. एज अ टीज़ जो प्रोग्राम है वो शेयर हो जाएगा. सो एज प्रोग्राम हमारा शेयर हो रहा है तो इट इज़ ईजी फॉर द यूज़र कि उसके प्रोग्राम के अंदर वो क्या कर सके, डायरेक्टली चेंजेस कर सकता है. मीन्स मॉडिफिकेशन पॉसिबल है. भाई हमने तो डाटा कुछ और दिया था, आगे जाके उसने डाटा कुछ और कर लिया, डाटा चेंज कर लिया, एंड देन इट इज़ क्लेमिंग कि भाई आपकी तो ये 10 कंडीशंस थी, 10 में से देखो हमने तो यहाँ पे हमारे पास 11 कंडीशंस आई हुई है, ये वाली कंडीशन हमारे पास तो मेंशन है नहीं, हमने अकॉर्डिंगली काम कर दिया है. तो मॉडिफिकेशन पॉसिबल. सो दिस इज़ दीज आर द फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरप्रेटर. नाउ नेक्स्ट इज़ आर कंपाइलर. हाँ जी, नेक्स्ट इज़ आर कंपाइलर. व्हाट कंपाइलर डज, कंपाइलर भी क्या, कंपाइलर का भी सेम सिनेरियो रहेगा सोर्स कोड को, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ ट्रांसलेटर. ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर, what it will do is convert the source code to the object code. हाँ जी, as interpreter क्या कर रहा था, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कर रहा था, बट इंस्टेड ऑफ हेयर कंपाइलर क्या करेगा, पूरे पेज को और भी कह सकते पूरे प्रोग्राम को इट विल रीड वंस एंड देन उसको एक साथ क्या करेगा, ट्रांसलेट कर रहा है.
एंड देन वो जा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो वेटिंग टाइम नहीं है कि फर्स्ट हमारी जो रो है, जो फर्स्ट लाइन है वो पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन वी आर एबल टू गो ऑन द नेक्स्ट लाइन। वेटिंग टाइम तो इसने ख़त्म कर दिया, बट अगर हमारी कहीं पे एरर आती है सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फाइंड कि भाई कौन सी लाइन पे है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें इजीली पता लग रहा था कि भाई थर्ड लाइन पे एरर आई है, सिर्फ उसको ठीक करना है। यहाँ पे जैसे ही हमारी एरर आई, वी नीड टू चेक आवर होल कोड, होल प्रोग्राम पूरे। अगर मान लो लास्ट पे है हमारी एरर, तो पहले की जो हमारी कमांड्स है हम पढ़ेंगे, दैट इज़ वेस्टेज ओनली। वेस्टेज किसका? टाइम का वेस्टेज है इन केस ऑफ एरर। क्लियर है बेटा जी इतना आपको? नेक्स्ट थिंग इज़ ये हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है, जनरेट करता है, .exe फाइल जनरेट करता है। दैट मीन्स व्हेनेवर हमारी कंपाइलर की फाइल शेयर होगी ओवर अ नेटवर्क और टू अनदर सिस्टम और अनदर डिवाइस या ड्राइव पे, तो ये क्या करेंगे, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल भेजी जाएगी। दैट मीन्स मॉडिफिकेशन यहाँ पे सोर्स कोड में नहीं होगा। ओरिजिनल फाइल नहीं भेज रहे हम, एग्जीक्यूटेबल फाइल जा रही है, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन तो नहीं होगी। तो प्राइवेसी है हमारे डेटा की, बट अपार्ट फ्रॉम दैम दैट ये जो फाइल जनरेट करता है दैट इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। दैट इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमने फाइल जनरेट करी है वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स कि भाई CPU का जो आर्किटेक्चर है मेन, ये हमारा काम कहाँ पे हो रहा है, बट डिस्कस्ड ओवर ना कि लास्ट में चीज़ें हमारी कहाँ जा रही, प्रोसेसर के पास। और प्रोसेसर हमारा कौन सा है, प्रोसेसर हुई आर प्रोसेसर, दैट इज़ CPU। ठीक है जी, ये चीज़ हमने डिस्कस करी ना। सो ओवर हेयर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, दैट मीन्स CPU में डिपेंडेंट है। एज वी डिस्कस ना कि हमारे प्रोग्राम्स अर्लियर होते थे वो भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते थे कि भी विंडो 7 में रन हो रहे हैं, 10 में रन नहीं हो रहे, या सिर्फ विंडो XP पर रन हो रहे हैं, 7 पर रन नहीं हो रहे। तो सेम सिनेरियो यहाँ रहेगा इन द केस ऑफ कंपाइलर्स, कि अगर वो एक सिस्टम पे कोई फाइल रन हो रही है दैट डजंट मीन्स कि वो दूसरे पे भी रन होगी। इफ़ इट इज़ ओनली पॉसिबल कि उनके CPU का आर्किटेक्चर सेम है। ठीक है जी। लाइक विंडोज़ की जो फाइल है वो एप्पल पे रन नहीं होगी, जो और एप्पल की वो विंडोज़ पे रन नहीं होगी। सो दैट इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। सो सेम, इट्स जस्ट एन एग्जांपल बेटा जी। सो सेम सिनेरियो हैपन्स इन द केस ऑफ कंपाइलर्स। हाँ जी, अनदर थिंग इज़ यहाँ पे हमारा क्या है, कोड ऑप्टिमाइज जा रहा है, EXE फॉर्म में जा रहा है, दैट इज़ ऑप्टिमाइज जा रहा है। दैट मीन्स इसको क्या चाहिए, लेस मेमोरी चाहिए। बट दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन केस ऑफ इंटरप्रेटर्स। तो यहाँ पे हमारे क्या है, ऑप्टिमाइज नहीं है डेटा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मोर मेमोरी चाहिए। I hope this much is clear to you. Go through this once and let's have our doubt tomorrow. Thank you and have a nice day.